Assalamualaikum students. As you know, this is our lecture number 5 of grade 3. So you have to mention the date April 29, 2020 and the day is Monday. Students, as you know, we have completed our unit number 1 notebook side and book side. So today we will start unit number 2 and the unit number 2 is Eidul Adha. First, we will discuss the objectives of this unit. The objectives of the unit Eidul Adha is we will read the page number 23 and we will pronounce the difficult words. On number 2, we will start the reading of whole unit and we will do some activities and question answers. After that, we will discuss the story. What is the story about? The story is about a Muslim's festival. We can call it a Muslim's festival. It is celebrated on 10th Dhul Hajj. मतलब कि ये हम मुसलमानों का त्यौहार भी कहते हैं और ये 10 जुल्हज को मनाया जाता है. द मुस्लिम सेलिब्रेट इट इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. मुसलमान इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं. It is also called the festival of sacrifice as the Hazrat Ibrahim salam was agreed on Allah subhanahu wa ta'ala command to sacrifice his son. Okay students, there is a story behind it. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दे दें, जिस पे वो राज़ी हो गए और उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को कंप्लीट करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने चाहिए और वो उसको कुर्बानी वाली जगह पर ले गए जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना था. जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुर्बान करने के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने उसकी जगह जो है वो दुम्बा रख दिया और उसी की याद में आज तक मुस्लिम जो है वो ईद-उल अधा मनाते हैं. अल्लाह ताला की राह में sacrifice करते हैं. Muslims sacrifice the cows, sheep and goats on this occasion. So students, I hope you will understand this story very well and you will remind this story on the occasion of Eid al-Adha. Students, first you have to write the story diary. On April 29, Monday you will pronounce the difficult words and your parents will listen these words. On April 30, Tuesday, there will be the reading of page number 23 and on May Wednesday, there is reading of page number 25 and on May 2, Thursday, there will be the reading of page number 26 plus we will done the page number book side page number 27. And on May 3, Friday, you will have to learn and write question number 1 and 2 on notebooks. And on May 4, Saturday, the test of reading will be conducted by the parents. I hope students you will write this diary on your diaries also. Okay, we will start our lesson with the reading page number 23. And student, open your books page number 23. There will be the start of the unit Eid-ul Adha. There is some vocabulary words. Okay students, here is some vocabulary words in the vocabulary box, so you have to learn these words. The first word is patience. Patience mean sabr se. Enthusiasm. Enthusiasm means जोशो खरोश. Immediate जल्दबाजी या जल्दी से. Exclaimed.
ऐलान करना, क्रॉसली पार करना, सेक्रीफाइस कुर्बान करना, अनयूजुअल आम तौर पर, इंस्पेक्शन मुआयना करना, कॉन्फिडेंटली एतमाद के साथ, नेबल्ड कुतरना, शेयर बांटना, डिस्प्लेइंग सामने डिस्प्ले करना दिखाना, eagerly what will we pronounce this word? eagerly mean बेसब्री के साथ, disturbed परेशान, anxious mean फिक्रमंद, grazing चरना, decorated सजाना, scalded झड़ना या किसी को जोर से हिलाना, फोर्सफुली पूरी ताकत के साथ, स्विच्ड छड़ी, कॉम्प्लेन्ड शिकायत करना, डिज़ाइन बनाना उसकी शक्ल बनाना, ब्लीट साउंड ऑफ गॉड मीन्स के बकरी की आवाज़, डिसअपेयर्ड गायब हो जाना, रियलाइज्ड एहसास होना महसूस करना, ब्रीफ केस छोटा सा ब्रीफ केस, अटेंशन मतलब तवज्जो देना, नॉक्ड दरवाजे पर दस्तक देना, सिपिंग पानी के घूंट भरना, हाइड छुपाना, इंसिस्टेड मजबूर करना, फ्लॉपी मीन्स फ्लॉपी ही होता है इसका मीनिंग भी, इंट्रोड्यूसिंग तारुफ करवाना, सर्टेनली तकरीबन, डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम करना, कर्व्ड मुड़ा हुआ. Okay student, you have to revise and learn these words. Okay student, we will start our reading from page number 24 and this is our part number 1, Eid al-Adha. This is a story of a boy who was too much excited about Eid al-Adha. So student, let's start with this line. Mother, when is father going to buy our God? Asked Ali as he came running into the house. Mother, अम्मी, when is father going to buy our God? कब जो है वो बाबा जाएंगे हमारे लिए बकरी लेने? Asked अली ने पूछा as he came running into the house, जैसे ही वो घर में अंदर भागता हुआ आ रहा था तो उसने आते ही अपनी मम्मा से पूछा कि हम बाबा कब जो है वो हमारे लिए बकरी लेने जाएंगे. Suhail's father has just brought a beautiful white and brown goat. सुहेल के फादर जो हैं उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाइट और ब्राउन कलर की बकरी ले आए हैं. एंड आमिर एंड तनवीर आल्सो हैव अ काउ इन देयर हाउस, और आमिर और तनवीर के घर भी एक गाय है. पेशेंस सन, सब्र रखो बेटा, पेशेंस सब्र रखो. योर फादर विल गो टुमारो, इंशाल्लाह आपके बाबा कल इंशाल्लाह जाएंगे. टू बाय अ गॉड फॉर सैक्रिफाइस ऑन ईद उल अधा, आपके लिए बकरी खरीदने ईद उल अधा पे कुर्बानी देने के लिए. सैड मदर ने कहा. मदर, वाई ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ही बकरी क्यों? सुलेमान हैज 2 गॉड्स, सुलेमान के घर तो 2 बकरियां हैं सुलेमान के पास. वाई कैंट वी हैव 2 गॉड्स, हम 2 बकरियां क्यों नहीं ले सकते? द गॉड विल बी सैक्रिफाइस्ड ऑन योर फादर्स बिहाफ, बकरी जो है वो आपके फादर के हिस्से में, मतलब कि आपके फादर की तरफ से कुर्बान की जाएगी. वाइल आई हैव अ शेयर इन तनवीर काउ, जबकि मेरा एक हिस्सा जो है वो तनवीर की गाय में भी है, मतलब कि मैंने एक हिस्सा तनवीर की गाय में भी डाला हुआ है. एक्सप्लेन्ड हिज मदर, उसकी मदर ने मजीद वजाहत के साथ उसको बताया. मदर, वी मस्ट बाय आवर गॉड टुमारो, हमें जो है बकरी कल ही खरीद लेनी चाहिए. इंसिस्टेड अली ने बहुत ही जोर देते हुए कहा. ऑल द बॉयज टेक देयर एनिमल फॉर अ वॉक, सब बॉयज जो है वो अपने जानवर वॉक के लिए लेकर आते हैं. एंड ग्रेजिंग, और उनको चराते हैं. एंड आई स्टिल डोंट हैव एनी एनिमल, और मेरे पास अभी तक कोई भी
जानवर नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ फन वाइल आई जस्ट लुक एट देम, कंप्लेन अली। अली ने शिकायत करते हुए कहा कि वो बहुत ज्यादा खेलते कूदते हैं, फन करते हैं, जबकि मैं सिर्फ उनको देखता हूँ। टेल तनवीर टू लेट यू टेक द काउ फॉर ग्रेजिंग। तनवीर से कहो कि वो अपनी गाय तुम्हें चरने के लिए दे दे। अदर नेबर्स आल्सो हैव अ शेयर इन इट। दूसरे नेबर्स हमसायों ने भी उसमें हिस्सा डाला हुआ है। तनवीर पेरेंट्स हैव ओनली 2 शेयर्स इन इट। तनवीर के पेरेंट्स का तो उसमें सिर्फ दो हिस्से हैं, बाकी हमसायों के हैं। एक्सप्लेन मदर। मदर ने मजीद वजाहत की। बट मदर, आई वॉन्ट अ गॉड इन माई हाउस। मैं एक बकरी चाहता हूँ अपने ही घर में। आई वॉन्ट टू फीड इट। मैं उसको खिलाना चाहता हूँ। एंड टेक केयर ऑफ इट। और मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। सेड अली। अली ने कहा। जस्ट देन फादर एंटर द हाउस। उसी वक्त फादर जो है वो घर में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। वट आर यू ऑल एक्साइटेड अबाउट। फादर ने आते ही सलाम किया और पूछा कि आप सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं। फादर, व्हेन वी आर गोइंग टू बाय आवर गॉड फॉर ईद उल अधा। हम कब जाएंगे अपनी बकरी लेने, ईद उल अजहा के लिए कब जाएंगे। आस्क्ड अली। अली ने पूछा। टुमारो इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम चलेंगे। सेड फादर सिटिंग डाउन ऑन द सोफा। फादर ने सोफे पे बैठते हुए कहा कि इंशाल्लाह हम कल जरूर जाएंगे। वाई कैंट वी गो टुडे। हम आज क्यों नहीं जा सकते। बेग्ड अली। अली ने बहुत ही जोर देते हुए कहा। आई एम टायर्ड टुडे। मैं आज बहुत ज्यादा थका हूँ। रिप्लाइड फादर। फादर ने जवाब दिया। फादर, कैन आई आल्सो गो विद यू। क्या मैं आज आपके साथ जा सकता हूँ। आस्क्ड अली टेकिंग द ब्रीफ केस फ्रॉम हिम। अली ने उनसे उनका ब्रीफ केस लेते हुए कहा। इट इज डिफिकल्ट वर्क सेलेक्टिंग अ सैक्रिफिशियल एनिमल। ये बहुत ही मुश्किल काम है कुर्बानी के जानवर को सिलेक्ट करना, ढूंढना। अली, यू विल गेट वेरी टायर्ड। तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे। सेड फादर। फादर ने कहा। नो नो आई विल नॉट। नहीं नहीं, मैं नहीं थकूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू गो विद यू। आई डू वॉन्ट टू गो विद यू। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। इंसिस्टेड अली। अली ने बहुत ही जोर देते हुए कहा। सुलेमान आल्सो वेंट विद हिज फादर टू बाय द गॉड्स। सुलेमान भी तो अपने बाबा के साथ गया था गॉड्स बकरियां लेने। ओके, नाउ प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। चलो अब मुझे एक ठंडा पानी का गिलास दो। फादर स्माइल्ड एट अलीज इंथ्यूजियाज्म। फादर जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने स्माइल किया अली के इस बेकरारी पे, मतलब जोशो खरोश पे। द नेक्स्ट डे अली फादर एंड अंकल जवाद रो टू द सेक्रिफिशियल एनिमल्स। अगले दिन फादर अली और अंकल जवाद जो है वो कुर्बानी के जानवरों की मार्केट में गए, आउटसाइड द सिटी, जो कि सिटी से बाहर थी। इट वॉज अ वेरी अनयूजुअल साइट। ये एक बहुत ही अजीब सी, मतलब कभी ना देखने वाली, जो कभी उसने नहीं देखी थी, ऐसी जगह थी। ऑल काइंड ऑफ एनिमल फॉर सेक्रीफाइस वर प्रेजेंट देयर। हर किस्म का जानवर जो कि कुर्बान किया जाता था वहां पे मौजूद था। मूविंग टू द पेज नंबर 26। देयर वर गॉड्स, शीप, खाउस एंड कैमल्स। वहां पे बहुत सारी बकरियां थी, भेड़ें थी, खाउस थी, गाय थी, और कैमल्स और ऊंट थे। देयर मास्टर्स वर डिस्प्लेइंग देम प्राउडली फॉर द बायर्स। उनके मास्टर, उनके बेचने वाले जो है वो बड़े फख्र से उनको जो है वो खरीदने वालों के सामने पेश कर रहे थे। द एनिमल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल डिजाइन ऑफ हेना ऑन देयर बॉडीज। एनिमल जो है वो सजे हुए थे खूबसूरत डिजाइन के साथ। ऑफ हेना, हेना मतलब मेहंदी, ऑन देयर बॉडीज, उनके जिस्म के ऊपर। एंड वर वेयरिंग बीड्स एंड बेल्स अराउंड देयर नेक्स। और उन्होंने अपने गर्दनों में बहुत सारी बीड्स, मतलब मोतियों वाले हार और बेल्स पहनी हुई थी। द एनिमल मार्केट वॉज बजिंग विद द साउंड ऑफ बा बा बी बी मू मू। पूरा एनिमल का मार्केट जो है, मतलब जानवरों की जो का बाजार था, वो गूंज रहा था जानवरों के साउंड्स के साथ। अली हैड नेवर सीन सो मैनी एनिमल्स एट वन प्लेस बिफोर। अली ने इससे पहले इतने सारे जानवर एक ही जगह पर कभी नहीं देखे थे। ही पैटेड देम जेंटली।
उसने उसको बहुत ही पैटेड, मतलब उसके हाथ फेरा सर पे बहुत ही जेंटली, आराम से, एज ही मूव्ड बिहाइंड हिज फादर एंड अंकल। उसके बाद वो अपने फादर और अंकल के पीछे चला गया। It appeared as if the animals were enjoying all the attention. ऐसा लग रहा था जैसे तमाम जानवर जो हैं वो इस attention को enjoy कर रहे हों, कि सारे उसकी तरफ, उनकी तरफ मुतवज्जो हैं। They were getting from the people, जो कि वो लोगों से हासिल कर रहे थे। Finally, आखिरकार, after much inspection, बहुत सारे मुआयना करने के बाद, एंड वॉकिंग, और चलने फिरने के बाद, अलीज फादर एंड अंकल चूज आ टॉल स्मार्ट गॉट। अली के फादर और अंकल ने एक बहुत ही लंबी और स्मार्ट गॉड, और जो है पतली जो है वो गॉड बकरी जो है वो ढूंढ ली। इट हैड कम हॉर्न्स, इसके जो है वो कर्व मुड़े हुए सींग थे, एंड लॉन्ग फ्लॉपी ईयर्स, और उसके लंबे जो है वो कान थे। इट्स बॉडी वाज वाइट, उसकी बॉडी वाइट थी, विद ब्राउन पैचेस, उसके ऊपर ब्राउन पैच बने हुए थे, ऑन इट्स नेक, उसकी गर्दन पर, एंड हिंड लेग्स, और पतली टांगे थी। अली टुक एन इमीडिएट लाइकिंग टू द गॉड, अली जो है वो बहुत ही जल्द उसको पसंद करने लग गया था। द गॉड आल्सो रब इट फेस अगेंस्ट अली, बकरी ने भी बहुत ही, मतलब उसने भी रब किया अपना फेस अली के साथ। अली वाज थ्रिल्ड, अली जो है वो चौंक गया। ओ फादर, इट इज अ प्रीटी गॉड, ये बहुत ही खूबसूरत बकरी है। आई विल कॉल इट बहादुर, मैं इसको बहादुर बुलाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। दे पुट बहादुर इन द सुजुकी पिकअप, उन्होंने इस बहादुर को सुजुकी पिकअप में डाला। अली आल्सो सैट ऑन द बैक सीट, अली उसकी पिछली सीट पर बैठा। एंड हेल्ड द रोप ऑफ द बहादुर इन हिज हैंड्स, और बहादुर की रस्सी को अपने हाथों में पकड़ लिया। दे बाउट ग्रीन ग्रास एंड हे फॉर द गॉड, उन्होंने सब्ज घास और घास भूस लिया, खरीदा बकरी के लिए। वेट टिल आई टेक यू फॉर अ वॉक, तब तक इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें वॉक पे नहीं ले जाता। सेड अली इन एक्साइटमेंट, अली ने बहुत ही जोश के साथ कहा। बा बा, सेड द गॉड, आगे से बकरी ने भी आंसर दिया। एज इफ इट अंडरस्टूड व्हाट अली वाज सेइंग, ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ रही हो कि अली क्या कह रहा है। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स वेरी सून, वो बहुत जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। Students, here is your notebook side, and first you have to mention the date April 27, 2020. Classwork, and the day will be Monday. On the second line you will write unit number 2, Eidul Adha, and your topic will be questions answers. Don't use the short form, you will write the question answer same like this, question and answer. After that you will write question number 1. On the next line you will write the question number 1. On the next line you will write, why were so many animals being displayed in the market. बहुत सारे एनिमल जो थे वो मार्केट में क्यों डिस्प्ले थे। आंसर है, दे वर डिस्प्लेड फॉर द सेक्रीफाइस ऑन ईदुल अधा, वो इसलिए जो है वो मार्केट में डिस्प्ले थे कि वो कुर्बानी के लिए उसको जो है वो डिस्प्ले किया गया था, पेश किया गया था। एंड योर क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ वर द एनिमल्स डेकोरेटेड, एनिमल्स डेकोरेट किस तरह किए हुए थे। जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा है कि एनिमल्स को हेना के साथ, बीड्स के साथ और बेल्स के साथ डेकोरेट किया गया था। तो हम आंसर में भी यही राइट करेंगे, दे वर डेकोरेटेड विद हेना, beads and bells. So student, you have to write it in very neat writing. Thank you. And you have any question regarding this lecture, then you can ask in the WhatsApp groups. Okay student, Allah Hafiz, take care.